ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی اور زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. رمضان کا مہینہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آج جمعۃ الوداع بھی ہو گیا. اس ہفتے جو ہم نے رپورٹیں کور کیں اس میں بہت ہی گمبھیر پریشان کن خبریں سامنے آئیں کہ رمضان کے اس مہینے میں ہمارے ملک میں بچوں پر جنسی تشدد کی خبریں آئیں. تقریباً پورے ملک سے ہی آئیں اور مساجد سے آئیں, مدرسوں سے آئیں, اعتکاف میں بیٹھے بچے کا بھی ذکر ہوا. یہ خبریں کرتے ہوئے حالانکہ ہمیں بھی عرصہ ہو گیا ہے لیکن پھر بھی دل دہل جاتا ہے کہ ہمارے ہاں بچے جو ہیں وہ اپنے گھروں میں گلی محلوں میں تو سیف ہیں ہی نہیں, لیکن اب مذہبی جگہوں پہ بھی جو ہے وہاں پہ بھی سیف نہیں ہے. اور اس کو ہم نے اس ہفتے کور کیا. اس کے علاوہ جو ججز کا معاملہ ہے, انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں, خطوط مل رہے ہیں, اس پر بھی بات ہوئی. یہ موضوعات ہیں, دیگر موضوعات ہیں جو آپ کے ذہن پر ہوں. ہماری فون لائنز کھلی ہیں, آپ کی ہم کالز لیں گے. آج جمعہ ہے. پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے عبداللطیف صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, آپ لوگ کیسے ہیں؟ جی شکریہ, آپ بتائیں. سر بہت مہربانی. اصل میں آپ کے ٹی وی کے چینل کے توسط سے جو ہے وہ سندھ کے صوبائی وزیر صاحب ہیں شرجیل میمن صاحب, تو ان کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو. جی بس اصل میں وہ انہوں نے پچھلے دنوں کچھ ایک اعلان کیا تھا کہ کراچی کے لیے مزید جو ہے بسیں لائی جائیں گی, اور جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ مختلف روٹس پہ چلائی جائیں گی. تو اب وہ میری گزارش صرف اتنی ہے کہ پہلے یہ جو بسیں جتنی بھی لائی جاتی ہے نا ماشاء اللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور وہ بالکل ہم ان کو سراہتے ہیں اور اچھا کام ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ جب بھی یہ بسیں یہ جو نئی بسیں لے آتے ہیں تو یہ انہی روڈز پر چلائی جاتی ہیں جن پہ آلریڈی بسیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ وہاں سے پہلے پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل ہوتی ہے. تو اب معاملہ یہ کہ جو شہر کے کچھ مضافات علاقے ہیں جن میں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, جیسے ہمارا علاقہ ہے بلدیہ ٹاؤن کا, تو یہ بلدیہ ٹاؤن ہے, سعید آباد ہے, ماری پور ہے, اور یہ ٹاور سے لے کر کے براستہ ماری پور روڈ اس پہ لہر بھی شامل ہے, ماری پور آکس پہ ہے, اور یہ پورا بلدیہ ٹاؤن, اطاع ٹاؤن, سعید آباد وغیرہ جتنا بھی پورا علاقہ ہے یہاں پہ کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے. اور بہت ہی مطلب ٹرانسپورٹ کی صورتحال بہت خراب ہے. لوگ بیچارے بسوں میں لٹکتے ہوئے, بسیں تو ہے نہیں وہ لیکن دھکے کھاتے ہوئے لٹکتے ہوئے جاتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ان سے وزیر صاحب سے شرجیل میمن صاحب سے کہ ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, کچھ ادھر بھی نظر کرم کرے تو یہاں کے لیے بھی بسیں جو ہے نا وہ جو چلوائیں تاکہ یہ کہ یہاں کی پبلک کو بھی تھوڑا سا ریلیف مل سکے. بالکل بہت مہربانی. ٹھیک ہے. ویسے یہ انٹرسٹنگ سوال ہے کہ یہ کون طے کرتا ہے کہ کس روٹ پہ بس چلانی ہے؟ وہ شرجیل میمن تو ڈیسائیڈ نہیں کرتے, وہ اس کا کوئی طریقہ کار ہوگا. آپ کا جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسٹڈی کرتے ہوں گے کہ یار یہاں پہ اگر لوگوں کی کنیکٹیوٹی بنے گی, کیونکہ بسیں تو چند ہیں یار, جتنا بڑا شہر ہے بسیں تو بہت کم ہے نا, وہ بھی کوئی 15 سال کے بعد آئی ہیں. یہ بھی ہے, اور سنتے رہے کہ بسیں آئیں گی لیکن چلیں آ گئی. یہ بھی اچھا سوال ہے. جیسے عبداللطیف صاحب کا بھی کہنا تھا نا کہ ان کا تو کہنا ہے نا کہ جو نیٹ ورک ہے, جو روٹس کی نیٹ ورک ہے اس کو وسیع کیا جائے. رائٹ. کراچی کی ایک بہت بڑی کئی کمزوریاں کراچی شہر کی ظاہر ہے. پبلک ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑی کمزوری ہمیشہ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک زمانے میں وہ منی بسیں چلتی تھیں, اب جیسی بھی چلتی تھیں. آپ نے کبھی سفر کیا منی بس میں؟ ہاں. نہیں نہ کرو یار, ایسے ہی کبھی تفریح کیا؟ نہیں, وہ بند ہو گئی نا پھر بیچ میں, تو میں نے کبھی مجھے موقع ہی نہیں ملا. اچھا بچا تھا. تو پوائنٹ اس کہ وہ پھر بھی چیزیں کور کر لیتی تھیں. توبہ ہے, لیکن پھر بھی چیزیں کور کر لیتی تھی. اب جو معاشی حالات ہیں, اب اگر آپ اکثر لوگوں سے بات کریں جن کے پاس بہت لوگ ہیں جن کے پاس گاڑیاں تھیں وہ موٹر سائیکل پر آ گئے, جن کے پاس موٹر سائیکل تھی وہ پبلک ٹرانسپورٹ پر آ گئے ہیں, اور پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر. یار موٹر سائیکلیں کتنی ہیں اس شہر میں؟ نہیں وہ تو ہے, مطلب لوگ بھی تو کتنے ہیں نا, لوگ بھی بہت ہیں. اور کل بھی جو ہم کر رہے تھے کہ کراچی میں کرائم کی ہم بات دیکھ رہے تھے, تو سب سے زیادہ چوری کیا ہوتا ہے؟ موٹر سائیکل, موبائل فون اور موٹر سائیکل. لیکن اگین دیٹ ڈزنٹ چینج دی فیکٹ کہ پبلک ٹرانسپورٹ آپ کی بہت بری طرح سے لیکنگ ہے. پبلک ٹرانسپورٹ بے ہنگم ہے, اسٹریسفل ہے, آپے سے باہر ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے راحیل اشر صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جی بات کروں گا, آج ویسے ہی فلسطین ڈے ہے یہاں پہ, آج ریلی نکالی. بالکل جی. اس کے حوالے سے دیکھیں, میرے ایک جاننے والے ہیں عمرے پہ ہی ہیں, مطلب مدینہ میں ہیں, مکہ میں. انہوں نے مجھ سے دو بات کی. انہوں نے خاص کر کہا جی آپ ذرا ہٹکے میں یہ بات ضرور کریے گا.
ظاہر ہے उनका मैसेज है मेरे पास अमानत है। उन्होंने कहा जी एक वीडियो है, उन्होंने मुझे भी शेयर की, बड़ी दिल दिलाने वाली है कि 2 बच्चे हैं, 4 साल की बच्ची है, 6 साल का बच्चा है। तो दुकान के बाहर बड़ा सा शमियाना टाइप शेड है, उसके पीछे छुपते हैं, इजरायली फायर करते हैं, बच्ची को लगती है, वो बच्चा बाहर आता है, हाथ जोड़ता है कि जी मेरी बेटी है, मेरी बहन जिंदा है, हटाने दें। वो फिर फायर करता है, बच्चा वक्त पे शहीद हो जाता है और उसकी बहन भी। उन्हें कहा कि मैं रोज़े रसूल पे खड़ा होके जो मैंने वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फरियाद की है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा मुसलमान हम लोग शर्मिंदा हैं, इतने शर्मिंदा हैं कि फ़लस्तीन के मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारी माएँ बहनें वहाँ इज्जत गंवा रही हैं, जवान बूढ़े सब शहीद हो रहे हैं, और आलम इस्लाम जो है तो खामोश तमाशाई बन के बैठा। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ऐसी तो ना थी, आपकी उम्मत को क्या हुआ कि जी एक जुल्म की इंतहा हुई भी है। उन्होंने कहा जी जुल्म और इंतहा की बर्बियत हुई भी है, पूरा आलम इस्लाम, पाकिस्तान, तालिबान, ईरान, टर्की, रदवान साहब, उसके बाद पूरा अरब बिल्कुल खामोश इख्तियार करके बैठा हुआ है। उन्होंने कहा जी आज क्योंकि वहाँ पे 27वीं शब है, हमारे पास वहाँ, उसने कहा जी 25 लाख लोग खाने काबा में हैं, 20 लाख लोग इस वक्त मस्जिद नबी में हैं। तो कह रहे सिर्फ मेरी दरख्वास्त, और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि जी इसमें शामिल हो जाए, सिर्फ एक दुआ करें अल्लाह और उसके हबीब के, या अल्लाह हमारे फ़लस्तीनियों के ऊपर रहम कर दे। जितनी कुर्बानी वो दे सकते थे, जितनी मुसीबतें, जितनी सब कुछ वो झेल सकते थे, वो झेल गए। क्योंकि हम बेहिस हैं, हम बिल्कुल बेहिस हैं, हम कुछ नहीं करते। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। अच्छा, अरब मुसलमान हुक्मरान की आपने बात की, तो ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बाकायदा काफ़ी हद तक इसराइल को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तुर्की का आपने जिक्र किया, तो कौन सी उन्होंने तिजारत की है, बल्कि उनकी तिजारत बढ़ती जा रही है इसराइल के साथ। उर्दन की अगर हम बात करें तो अच्छा, उर्दन की जो अवाम है उन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ मुजाहरे नहीं किए, उन्होंने किसी चीज़ के ख़िलाफ़ मुजाहरे नहीं किए, हुक्मरान जो हैं उनके बादशाह उनके ख़िलाफ़ मुजाहरे नहीं किए। वो पिछले 10 दिनों से इसराइल के ख़िलाफ़ इसराइली सफारत खाने के इर्द गिर्द मुजाहरे कर रहे हैं, और अब ख़बरें आ रही हैं कि क्रैकडाउन होने वाला है। और अभी सऊदी अरब के एक डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट हुआ है उर्दन के साथ कि जी हम आपकी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, ये जो आपके यहाँ फसाद पैदा हो रहे हैं, तो फुल सपोर्ट है जी। अच्छा, यूएई की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि वहाँ से रूट होके से माल भी पहुँच रहा था, सामान भी पहुँच रहा था इसराइल। और अभी जो ये हमला हुआ है वर्ल्ड सेंट्रल किचन के एहलकारों पर, तो उसके बाद एक ख़बर बड़ी एक ब्रेक हुई है हर जगह कि जी यूएई ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए हैं इसराइल के साथ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन रोकी है एड पहुंचाने के लिहाज से। तो मतलब जो एक एमिरेट हॉस्पिटल था ना वहाँ पे थोड़ी बहुत वो इमदाद पहुँच जाते थे, वो उसकी कोऑर्डिनेशन उन्होंने इसराइल के साथ, इजरायली सदर के साथ बैठे हुए थे ना कल, इजरायली सदर के साथ जो यूएई के सफ़ीर हैं इसराइल में, वो इजरायली सदर के साथ बैठे हुए थे इफ्तारी पर जेरूसलम में। तो ये सिचुएशन है, इट्स नॉट साइलेंस, इट्स कंप्लिसिटी। बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद जुल्करनैन साहब हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह साहब। हेलो जी 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 सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, माशाल्लाह, मैंने पहली दफ़ा कॉल की मुल्तान से और मेरी मिल गई। वेलकम। मैं आप लोगों का प्रोग्राम रेगुलरली सुनता हूँ। आज वसतुल्लाह साहब नहीं है जी, वो बाकी ज़रार भाई और आप लोग शाफिर भाई से। मेरा सवाल ये है, मैं कल प्रोग्राम सुन रहा था, ये जो बच्चों के साथ होता है मामला मदारिस में, या मतलब कारी हजरात करते हैं, तो सवाल ये है कि क्या उन लोगों के साथ बचपन में ऐसा हुआ होता है जो बच्चों के साथ इतना जुल्म करते हैं? शायद एक बात। तो दूसरी बात ये कि ये जो आप लोगों तक जो रिपोर्टिंग होती है मामला, ये तो शायद 1% 2% भी नहीं होते। मुश्किल है सर, मुश्किल हम जी। डेली लाइफ में बड़ा सुनते हैं कि बच्चों के साथ कारी घर पे गया होता, उसने गलत हरकत की या कोशिश करते हुए पकड़ा गया। तो ये तो मतलब है रिपोर्टिंग आपकी हद तक भी शायद बहुत कम केस होते हैं जो हम लोग डेली सुन रहे होते हैं मामला आम अपनी डेली लाइफ में। तो सवाल वही है कि क्या इन लोगों के साथ कोई ये काम रुक पाएगा या काम वक्त के साथ बढ़ता जाएगा दिन ब दिन? बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल पूछा। लेकिन ये है जुल्करनैन साहब कि मेरा ख्याल है कि हमने कल परसों इस पे बात नहीं की, लेकिन हमारे यहाँ जिस तवातुर से ये केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वालिदैन का भी बड़ा अहम रोल बनता है कि वो अपने बच्चों को ना
اپنی نظروں سے اوجھل ہونے دیں. ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں آئے دن گلیوں میں بچے ایسے اوپنلی پھر رہے ہوتے ہیں, ان کو بھیج دیتے ہیں کہ جا کے چیز لے کر آ جاؤ, یہ کر کے آ جاؤ. یا ایون گھروں میں بھی اگر آپ بلا رہے ہیں استاد کو کسی کو, تو گھر والوں کو نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ ہمارا معاشرہ اس لحاظ سے ہم کچھ بھی کہتے رہیں نا, ہم بڑی مسلمان قوم ہیں, عظیم ہیں, نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, لیکن ہمارے ہاں بہت بگاڑ بڑھ گیا ہے, جہالت ہے, تعلیم نہیں ہے, فرسٹریشن ہے, اور اس کا نشانہ پھر بچے بنتے ہیں. پرورژن ہے. آپ نے جو بات کی ہے ابھی ذوالقرنین صاحب, بالکل 1 سے 2% اگر رپورٹ ہوتے ہیں, اور آپ یقین مانیں اب کل ہم جب شو کر کے واپس گئے نا, تو رات کو میں خبریں دیکھ رہا تھا, تو 1 اور 2 اور اس طرح کی خبریں میں نے آپ کو پھر واٹس ایپ بھی کیا تھا, میں نے کہا یار یہ بھی دیکھ لیں. تو آپ سوچیں کہ اگر ایک ہفتے میں تقریباً 10 واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں جو ہمیں نظر آئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ 15 اور بھی رپورٹ نہیں ہوئے, اور اگر یہ 2% ہے تو پھر اصلیت کیا ہے. ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر اگر یہ آپ کو پتہ ہے, ہم نے اس پر کئی بار شوز بھی کیے ہیں کہ بچوں کو سکھایا جانا چاہیے کہ یار گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتی ہے, کہ اگر تمہیں کوئی اسی طرح سے ہاتھ لگا رہا ہے تو تمہیں اسی وقت شور مچانا ہے, تم نے اس کو روکنا ہے, کیونکہ یہ جو ابیوزرز ہوتے ہیں اور جو چائلڈ مولیسٹرز ہوتے ہیں وہ بچے کو اس طرح ورغلاتے ہیں کہ وہ بچہ سمجھے کہ جی یہ میری غلطی ہے, یا یہ میں نے انوائٹ کیا ہے کسی طرح. اچھا, اب کچھ سکولز میں یہ اس طرح کی تعلیم ملتی ہے, لیکن اکثر جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر ایک ہمارا طبقہ ہے وہ اٹھ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی آپ سیکس ایجوکیشن دے رہے ہیں بچوں کو. حالانکہ ایسے نہیں ہے, وہ ان کو پروٹیکشن دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر بہت لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی پروٹیکشن نہ ہو. بہت والدین بھی ہیں بدقسمتی کے ساتھ, کہتے ہیں کہ نہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایسی باتیں نہ کرنے سے لوگوں بچوں کو نہ سکھانے سے بھی اس طرح کی پھر چیزیں بڑھتی ہیں, کیونکہ وہ بچے کو اتنا ڈر ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے بھی بات نہیں کر سکتا. کہ دیکھیں, اگر آپ کے والد یا آپ کے والدین آپ کو نہلا رہے ہیں وہ صحیح ہے, وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ہاتھ لگ جائے وہ صحیح ہے, لیکن اگر آپ کا کوئی ٹیچر, آپ کے کوئی فیلو اسٹوڈنٹ, آپ کے کزن, آپ کا انکل اس طرح آپ کو ہاتھ لگائے تو نہیں ہے. آپ اکثر دیکھیں گے ایون فیملیز میں بہت ہوتا ہے, گھروں میں جتنا ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ کسی اسکول یا کسی مسجد میں مدارس میں بھی نہیں ہوتا ہوگا. تو کچھ جیسے بچوں کو بھی ایک احساس ہوتا ہے, کچھ انکل ہوتے ہیں, آؤ بیٹا میری گود میں بیٹھو, پھر وہ اس طرح پکڑ رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی انوسنٹ بھی ہوتا ہے, لیکن بچے کو خود بھی پتا ہوتا ہے. ساحل NGO نے اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی انفارمیشن ویڈیوز بھی بنائی ہیں. یہ جو آپ کی جو چائلڈ ریسکیو آرگنائزیشن ہے, مجھے اب نام ان کا یاد نہیں آ رہا, انہوں نے بھی اس طرح کی بنائی ہیں. ان کو ایز پبلک سروس میسیجز یہ ہر اسکول میں, ہر جہاں پر بھی بچے ہوتے ہیں, مطلب چاہے وہ مدرسہ ہو چاہے وہ اسکول ہو, یہاں پر ان کو لازم بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ والدین کو بھی آگاہ ہونا چاہیے, ان کو نظر, لیکن کبھی کبھی you don't have a choice, you can't watch the child all the time, تو یہی ہے کہ کوئی ایک سولوشن نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں نا کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ بچے کو, کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. اس ہفتے ہم نے جو کیسز کور کیے اس میں 2 کیسز میں جو بھی وہ اکیوز تھا, اس نے کہا کہ جی میں تو اس کو کمرے میں لے کے گیا تھا کہ میرے پیر دبا دو, یا میرا کمر دبا دو, یا سر دبا دو. یہ ہمیں دیکھیں نا, یہ لائن کراس ہو رہی ہے نا. بالکل کراس. اگر لیٹس سے کہ آپ کا کوئی رشتہ ایسا ہے کہ آپ بچے سے کہہ رہے ہو کہ یار میرے پیر دبا دو, تو وہ پبلک سپیس پہ ہونا چاہیے نا, سب کے سامنے, ڈرائنگ روم میں ہونا چاہیے نا. آپ کمرے میں لے کے جا رہے ہو تو آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ کیوں, اور بچے کا وہ قرآن سیکھنے آیا ہے, نماز پڑھنے آیا ہے, وہ آپ کے پیر دبانے کے لیے تو نہیں آیا نا یہاں پہ. ایسے زینب کے کیس میں بھی وہ والدین چلے گئے تھے عمرے پہ, اپنے کسی رشتہ دار کے گھر پہ چھوڑ گئے تھے, انہوں نے کوئی خیال نہیں رکھا نا. اگر لڑکی سڑک میں گھوم رہی ہے, 6-7 سال کی لڑکی, ایک بندہ ہاتھ تھام کے چلا جاتا ہے, کیا کرے. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک جی. ہمیں اگلے کالر ہیں ونود میگھوار صاحب ٹنڈو محمد خان سے. السلام علیکم ونود بھائی. وعلیکم السلام. نمستے سر. آج آپ بچوں کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہو, تو میرا سوال بھی یہی تھا کہ ایک بچی ہے پریا کماری, آپ نے بھی اپنے پروگرام میں اس سے بات کی تھی, 2.5 سال سے گم ہے نا, لیکن اس کے لیے جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اتنا اس کو اسپیس نہیں دے رہا, نہ ہی پنجاب اور KPK کی سول سوسائٹی اور وہاں کی پارٹیز کوئی اس کے لیے آواز بلند کر رہی ہے. تو آپ کے پروگرام کے تصب سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو آپ یہ یاد دہانی کرائیں کہ ایک 2.5 سال کی بچی اغوا ہو چکی ہے, لیکن اس کی ماں ابھی تک رو رہی ہے,
लेकिन कोई भी ना वजीर आज़म नोटिस ले रहा है, ना चीफ जस्टिस, ना कोई और। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर, एक इस पे थोड़ी बात हो जाए तो अच्छा होगा। हाँ हाँ हाँ, एक तो ये मेरा ख्याल है हम तस्दीक कर लें कि ये जो जिसको आपने मेन स्ट्रीम मीडिया कहा ना, वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, खबरें कहीं और चल रही होती हैं। दूसरा ये कि प्रिया कुमारी का पता नहीं, मैंने आपको कल परसों मेंशन किया, कल परसों ये खबर पता नहीं सोशल मीडिया पे ये चल रहा था कि कंफर्मेशन नहीं है कि वापसी के हवाले से ये कुछ मैं भी चेक करता हूँ, अभी मेरा फोन म्यूट पर है, लेकिन ये हमारे रेडार पे है और हम ये करना भी चाह रहे थे, लेकिन आप देख लें कि हमारा न्यूज़ एजेंडा ऐसा है। हमने गिलगित से एक बच्ची के अगवा की खबर इस हफ्ते हमने की, उसको 2 महीने हुए हैं, हमें पता अभी 2 हफ्ते पहले। हाँ, तो पूरे मुल्क में ये वाक़यात हो रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये आप कभी उम्मीद ना करें कि कोई मतलब असेंबली में इस पे बात होगी, या हमें शायद सिंध असेंबली में इस पे बात हो, जो होनी चाहिए, लेकिन कोई इस पर सो मोटो या इस तरह का कोई नोटिस नहीं लिया जाएगा। और वो इसलिए है क्योंकि 2.5 साल हो गए हैं, अगर लेना था तो उस वक्त लेते। हाँ, और अनफॉर्चुनेटली जितने बच्चे गुमशुदा होते हैं या अफवाह होते हैं इस मुल्क में, अगर आप एक्चुअल तादाद कभी देखें आपका दिल दहल जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये इशू इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इशू इम्पोर्टेंट है, हर एक ऐसा इशू इम्पोर्टेंट है, लेकिन कभी कभी आप उस एवरलॉन्च के नीचे इतने दब जाते हैं कि इंडिविजुअल केसेस इस तरह के जो होते हैं वो कहीं छुप जाते हैं, गुम जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली, इनफैक्ट मैं अभी एक ब्रेक के अंदर भी एक दो जवाब के लिए मालूमात हासिल करता हूँ, क्योंकि कुछ अपडेट आई थी इसके बारे में अभी जो मैं देख रहा था। एनीवे, अभी इसके बाद इस पे आते हैं थोड़ी देर में। अगले कॉलर हैं हमारे पास, खैरपुर से हैं शफकत अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? जी बस बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का करम। अच्छा, मैंने थोड़ी ये बात करनी थी इंटीरियर सिंध के बारे में कि देखें कराची के हालात तो बहुत ख़राब हैं, मतलब वो जैसे कहें कि जिस तरह भाई ने भी अभी बात की कि वो ज्यादा हाईलाइट होते हैं। इंटीरियर सिंध में मैं बताऊं आपको कि इससे बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, दिल्ली पे कोई बाइक, मोबाइल और ये इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन उसमें ये है कि या तो आपके नुमाइंदगान जो हैं अंदरूनी सिंध के, उनको तनख्वाह थोड़ी मिलती है, या वो इस काबिल नहीं है कि वो इन चीज़ों को या करते हो तो आगे ये ना चलाई जाती हो। ठीक, और दूसरा एक और चीज मैंने कहनी थी, पुलिस अपना काम अच्छा कर रही है, ठीक है, लेकिन पुलिस जो है ना को टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए। अभी किसी मतलब किसी से मोटरसाइकिल छिन गया, उसे मोबाइल भी छिना गया, ठीक है, तो जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी के 2 मिनट लगते हैं, IMEI नंबर हो भाई पता चल जाएगा बंदा कौन था, नादरा से डेटा ले लिया। लेकिन वो टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी एक बंदे को मतलब SP लेवल तक अप्रोच करनी पड़ती है। अभी हर किसी की तो नहीं होती, ना ही वो इतनी आसानी से इस चीज पे मानते हैं कि हाँ जी हम इसको सू करते हैं। और तीसरी बात प्रिया कुमारी के बारे में करनी थी, वो भाई ने, विनोद भाई ने कर दी। इस पे सर थोड़ा हाईलाइट होगा तब इन पे प्रेशर होगा। ये भी बिल्कुल सही, सोशल मीडिया पे तो हो रहा है, लेकिन मीडिया पे भी होना चाहिए। सिंधी मीडिया में हो रहा है, उर्दू मीडिया पे भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी, शुक्रिया आपकी कॉल का। हैदराबाद से अगर मतलब अब जाहिर है हम तो करते रहते हैं, अक्सर जो बाकी जो हमारे ब्रदर एंड सिस्टर एंकर्स हैं उनके साथ मेरी बात होती है, मैंने कहा कि यार जिस दिन आपके पास सियासत की खबर भी नहीं होती उस दिन क्यों ज़रूरी होता है आपको सियासत पे ही बात करनी। क्या कहते हैं? नहीं, क्योंकि बस वो देखो चूरन बेचना होता है, हमें और कोई काम नहीं है हमारा, अवामी मसाइल हैं यार। देखो ये भी तो खबरें हैं ना। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये ना समझें कि आप कोई पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, बेशक आप ये ना सोचें, लेकिन यार ये एक ला हासिल बेतुकी सियासी गुफ्तगू जिसमें 3 बंदे बैठे हो, हर छोटे बड़े चैनल पर हर छोटा बड़ा एंकर कर रहा है, तो हर छोटे चैनल पे हर बंदा कर रहा है। लोगों ने कहा क्या फायदा है, भेजा फ्राई हो गया, क्या फायदा है? आपने मतलब एक शाजिब खानजादे देख लिया, आपने एक हामिद मीर देख लिया, आपका कवर हो गया, कवर हो गया, काफी हो गया। अब क्या मतलब हर एक ABC चैनल पर यही गुफ्तगू होनी चाहिए? अच्छा, सेकंड टियर और थर्ड टियर और फोर्थ टियर गेस्ट के साथ। आपको पता है कि हम बहुत इस्रार करते हैं कि हमारी जो खवातीन हैं उन्हें भी कॉल करना चाहिए, प्रोग्राम देखती तो हैं। तो वी हैव अ कॉलर फ्रॉम हैदराबाद, नादिया हैं फोन लाइन पे। नाजिया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर मुझे बहुत मतलब मैंने कॉल करने की कोशिश की थी पर कॉल नहीं मिल रही थी एक्चुअली में। अच्छा, तो सर मुझे 2 चीजें आपसे शेयर करनी थी। एक तो ये प्रिया कुमारी वाला जो मसला है उसके ऊपर, और दूसरी मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप अगर मेरी बात अगर आगे पहुंचा सके तो बताएं। 15 शोबान को एक टीचर थी सखर साइड से, उस खातून का मतलब सिलेंडर की वजह से डेथ हो गई, चिकन फट गया था, गैस सिलेंडर। जी सर।
तो सर हुआ यूँ कि वो हॉस्पिटल नहीं जा सकी क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर बर्निंग वार्ड नहीं था। उसके बाद उसको गम्बट लेकर गए हैं, लेकिन गम्बट में भी बर्निंग वार्ड नहीं था। तो मेहरबानी करके आप अगर सिंध गवर्नमेंट को इतना कह दें कि भाई बर्निंग वार्ड बना दे, वहाँ पर इतनी बड़ी हॉस्पिटलें तो बनी हुई हैं लेकिन बर्निंग वार्ड नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। तो उस खातून की डेथ हो गई सर, और उसकी उम्र 35 ईयर थी। नाजिया जी, ये किस इलाके की बात कर रही हैं आप? सखर में। ये बात सही है। हमारे यहाँ इस तरफ शिमाली सिंध में बर्न्स फैसिलिटीज नहीं है, कराची लेके आना पड़ता है। और आप देखेंगे 7-8 घंटे जब आप ट्रैवल करके यहाँ पहुँचते हैं, डिपेंड करते डॉक्टर फैसिलिटेट होते हैं ना तो वो बच जाती, लेकिन कोई था ही नहीं। उनको कहा गया कि आप हैदराबाद या कराची लेकर जाएं, जब तक वो गम्बट ही आधा घंटे का मेरे ख्याल में सफर है जी, तो उसमें उसकी डेथ हो गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ये अफसोसनाक खबर है, और जाहिर है कि हमें ये कहती तो है गवर्नमेंट कि हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को हमने बड़ा किया है, लेकिन बहुत ज़रूरत और भी है कुछ हद तक। और ये जो बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ हैं सही है, इनकी भी ज़रूरत है, लेकिन ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं यार। अब अगर खैरपुर में या टंडो आदम में या भनोट में या कहीं भी आपको 3rd डिग्री बर्न्स हो जाए तो क्या आप कराची आओगे यार? हाँ, और कराची में आपको कराची पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लग जाएगा? कराची में दाखिल होकर अस्पताल तक कितना टाइम आपको लग जाएगा? और जो बर्न इंजरीज होती है ना यार, दे आर एक्सट्रीमली पेनफुल, और उसमें फिर मजीद इन्फेक्शन होती है, मजीद दर्द होती है। हालांकि कोई इतना भी मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट कि लाइक आपने कोई ये नहीं कह रहा कि आपने हर शहर में एक लिवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी देनी है। लेवल की काम नहीं हो रही, प्लास्टिक सर्जरी की बात कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर, लेकिन रोबोटिक सर्जरी, चाहे हेल्थ हो एजुकेशन हो, हमारी गवर्नमेंट्स का सबसे ज़्यादा जो है ना हाई एंड स्टेट ऑफ द आर्ट पे उनका तवज्जो होती है। जो बेसिक सर्विसेज हैं नीचे स्टेट ऑफ द ग्राउंड पे किसी को परवाह नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर आपकी मजीद कॉल्स लेंगे। आपकी हम कॉल्स ले रहे हैं। हमारे साथ अभी सखर और कराची से भी कॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन पहले चलेंगे लाहौर, जहां से सैयद असद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहना चाह रहा था जी कि अपना पहले तो ये कि आपका प्रोग्राम जो है वो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग प्रोग्राम है। थैंक यू सर, शुक्रिया। दूसरा, मैं सिर्फ आज का टॉपिक भी और कुछ ये पिछले कई सालों से जी देखिए, हमारी ये जो अपना मीडिया में रिपोर्ट होते हैं, बच्चियों के साथ जातियाँ जो होती हैं, बेचारों को उठा के कत्ल कर दिया जाता है, फिर लाशें मिल जाती हैं। इसी तरह जो खवातीन के साथ जो ज्यादतियाँ होती हैं, इस्लामाबाद के 2 केसेस आप लोगों को याद होंगे जी, लेकिन अभी तक किसी को कोई वो जिसको कहते हैं ना फ्रेज होता है करार वाकई सजा नहीं मिली, ताकि एक वंस एंड फॉर ऑल किसी को सजा मिले, कुछ हो तो वो आगे से वो लेसन बन जाए और फिर उसके बाद लोग उस पर वो ना आए। हमारा जस्टिस सिस्टम बिल्कुल इस मामले में जीरो है, एक फेल्ड वो है। सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की सिक्योरिटी हमारे मुल्क में होनी चाहिए कि जो करे उसको जल्द अज जल्द स्पीडी ट्रायल और उसको सजा मिले और लोगों को पता चले और वो उससे सबक सीख सकें। बिकॉज ये देखें, ये आप लोगों के प्रोग्राम्स में आता है, बाकी चैनल्स पे भी आता है, 4-5 दिन इस पे वो हाईलाइट किया जाता है, फिर उसके बाद वो बिल्कुल डाई डाउन हो जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को जब तक वो एंड उसका एक वो ना रिजल्ट आ जाए उस वक्त तक वो दिखाना चाहिए। लेकिन देखें, ये जो सियासतदान और ये सब हम लोग देखते हैं ना, इनसे हमें कोई फायदा नहीं होता। जो बात अगर इफ दे आर नॉट, कोई भी गवर्नमेंट हो वो, अगर इफ दे आर नॉट एबल टू डिलीवर ऑन द सिक्योरिटी ऑफ 22 करोड़ अवाम, तो फिर उसका तो कोई फायदा ही नहीं है ना। सिर्फ एक मेरा ये पॉइंट था। तो अगर असद साहब आपने आपका पॉइंट, नहीं, आपका पॉइंट काफ़ी वैलिड है। सिर्फ मैं ये भी इसमें ऐड करूंगा कि हमारे यहाँ जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हम कहते हैं ना कि जी वो करार वाकई सज़ा होनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस ये बताता है कि वो कोई डिटरेंस नहीं है। मतलब जस्टिस तो होना चाहिए, ये तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जब हम ये कहते हैं ना कि बिल्कुल वो कड़ी सजा होनी चाहिए, जल्द होनी चाहिए, खाली कड़ी सजा की भी बात नहीं कर रहे, ये तो कह रहे हैं, देखिए ये बात कर रहे हैं स्पीडी ट्रायल। देखिए स्पीडी ट्रायल अपनी जगह है यार। देखो मैं एक तरह से, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि स्पीडी ट्रायल में देयर आर इश्यूज, लेकिन इट इज लेसर इवल फिर भी मेरी नज़र में। यहाँ पर कहाँ होता है यार,
आई मीन स्पीडी ट्रायल क्या, यहाँ पर तो मतलब 10-10 साल लग जाते हैं। ठीक है, अब जहाँ तक इन्होंने बात की कि किस किस को सज़ा मिली, अच्छा मोटरवे रेपिस्ट को बिल्कुल फांसी मिली थी, ज़ैनब अंसारी के कातिल को, इमरान खान जो था, उसको फांसी मिली थी सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इतना फोकस था हाई प्रोफाइल हो उन दोनों इश्यूज पे। जाकिर जाफर अभी भी बैठा ही हुआ है, उसको अभी तक फांसी नहीं लगी, आई डोंट नो व्हाट द डिले इज। ठीक है, वो तो एक क्लियर कट केस है यार। अच्छा, जहाँ तक सख्त सज़ा की बात है ना यार, सख्त सज़ा की बात नहीं है, सज़ा मतलब सर्टन हो, यू नो, यकीनी हो कि आपको सज़ा मिलेगी। अब वो स्पीडी ट्रायल हो या वो नॉर्मल ट्रायल हो, पॉइंट इज यहाँ हमारी जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन के जो मसले होते हैं ना, वो ही इतने लैकिंग हैं कि बंदा कभी पकड़ा ही नहीं जाता, पकड़ा जाता है तो फिर वो 1000 उसमें नुक्ते निकाल लेते हैं केस में, वो केस चलता रहता है। सो आई वुड प्रेफर स्पीडी जस्टिस ओवर नो जस्टिस एट ऑल। अगर स्पीडी जस्टिस में कुछ मसले मसाइल भी हैं तो ठीक है, इट इज स्टिल अ लेस बैड ऑप्शन मेरी नज़र में। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये प्रिया कुमारी की जो बात हो रही है, तो उसमें जो अपडेट जिसकी आप बात कर रहे थे ना, तो वो ये नहीं है कि वो रिकवर हुई है, जाहिर है वो तो हम सबको पता होता। अच्छा, 2 साल से ज़ायद हो गए हैं, ये सखर की बात है, और वहाँ पर ये एक मुहर्रम के दौरान उन्होंने सबील वहाँ पर लगाए हुए थे, तो वो वहाँ पे थी, वहाँ से वो गायब हो गई। ये अशूरा की रोज़ है, अशूरा के दिन। अब वहाँ पर तलाशी हुई, राजू मल जो उनके वालिद साहब हैं, उन्होंने FIR भी दर्ज की। मुझे याद है कोई 2-2.5 साल पहले हमने भी इस इशू को कवर किया था इसी शो पर। लेकिन फिर जैसे होता है, जैसे अभी असद साहब ने भी किया, कि फिर टेंशन शिफ्ट हो जाती है, वो सर्च अनसक्सेसफुल होती है। अच्छा, बच्चों की जो अगवा होता है ना, उसमें पहले 24 घंटे क्रिटिकल होते हैं, ये ग्लोबल नॉर्म है, पाकिस्तान में भी ये नॉर्म है, इसके ऊपर काफ़ी डॉन अखबार में मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की थी। ठीक है, लेकिन फिर पुलिस बताती रहती है उन्हें कि जी नहीं मिल जाएंगी, कम्युनिटी लीडर्स भी उसके अंदर आते हैं। ये फिर केस दोबारा पब्लिक आई में कैसे आया है, जब फातिमा फरीरो का केस आया, तो जब ये एक दोबारा एक दानीपुर वाला जब दोबारा एक, अच्छा उसके इसका भी क्या बना हमें नहीं पता, इस पर भी हमें फॉलो अप करना चाहिए। अच्छा, फिर क्या हुआ कि क्योंकि एक लड़की है उसके साथ ये से हुआ, तो लोगों को फिर भी याद आ गया प्रियंका कुमारी का केस। तो प्रियंका कुमारी की जो वालदा है, उनके पुराने वीडियोस, उनके नए वीडियोस, वो फिर दोबारा सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगे। अभी जो जैसे अभी 3 कॉलर्स ने बात की है, मैं अगले दिन अस्पताल में था, तो एक और वहाँ पर डॉक्टर साहब मिले, उन्होंने भी कहा कि यार आप इसको रेज करें, मैंने आपसे बात भी की थी इसके बारे में, राइट। तो अब क्या हुआ है कि इस हफ्ते अभी कुछ दिन कबल ही एक JIT बना दी है सिंध हुकूमत ने। मीरपुर खास के DIG जो हैं वो इसकी सदारत करेंगे, हैदराबाद के SSP वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन 2-2.5 साल बाद इस तरह के केस को, कोल्ड केस को ट्रेस करना, यार आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक। ये पब्लिक प्रेशर को स्पेसिफाई करने के लिए इन्होंने ये एक सुपर बाकायदा रिसर्च है जो रोशनी है इनफैक्ट, जो चाइल्ड अबडक्शंस को ट्रेस करते हैं, वो कहते हैं यार 24 घंटे में उन्होंने ट्रेस किया है कि मुल्क के एक कोने से बच्चा दूसरे कोने में हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं अपनी अगली कॉल की तरफ। सखर से हमारे साथ हैं अब्दुल सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब बज़रार, मैं तो आपकी बातें सुन रहा था तो बहुत सी चीजें सीखने के लिए भी मिल रही थी, मगर है आज कॉलर डे वैसे। जी सॉरी जी। मैं ये एक पहले तो मैं रेलवे के हवाले से कुछ बात करना चाहता था, मगर वो जो हमारी अदी नादिया एक बता रही थी कि वो उनको जाना पड़ा। मैं आपको थोड़ा बताऊं कि सखर में बंस वार्ड जबरदस्त किस्म का बना हुआ है, मगर वो एक्टिव नहीं है। अच्छा। और हम लोग कहते हैं कि जो अस्पताल का सबसे बड़ा, सखर की सिविल अस्पताल का सबसे बड़ा ऑफिसर है, उसे हम कहते हैं सिविल सर्जन। सिविल सर्जन साहब को ये कहा जाता है कि कम से कम भी भाई आए हुए हो आप जॉब पे, तो थोड़ा सा अस्पताल का राउंड तो करो। राउंड भी नहीं करते, राउंड करेंगे तो वो मसाइल देखेंगे। और एक हुजूम होता है हर OPD के बाहर, वो 100-200 लोग खड़े होते हैं। जो बंस वार्ड का इशू है वो 5 साल से बना हुआ है वार्ड, वहाँ पे स्प्लिट AC लगे हुए हैं। ये वही बिल्डिंग है जो लाल कलर की बहुत आलीशान जबरदस्त मेन रोड से नजर आती है? अच्छा, वो लाल बच्चों वाली अस्पताल है, इसको 1 अरब की ग्रांट से हुकूमत देती है। हाँ। और ये जो है, ये जैसे ही आप इमरजेंसी से आगे चढ़ते हैं दीवान मुश्ताक से, उससे पहले वहाँ पे बनी हुई है एक राइट साइड पे आप जब चढ़ते हैं तो मतलब बिल्डिंग बनी हुई है। जी, बिल्डिंग बनी हुई है, मगर उसको फाल काम नहीं चल हो रहा। मैं बता रहा हूँ आपको कि सिंपल ओरिएंटेशन जितना काम अगर
ये कर लें, डॉक्टर्स तो अच्छे मौजूद हैं, तो ये एक्टिव हो सकता है। एक्टिव कौन करे ये मसाले। अच्छा, जो मैं बात करना चाहता था रेलवे के किरायों के हवाले से, तो 500% किराया बढ़ता है। फर्ज करें कि कल या इस हफ्ते 10 रुपए बढ़े हैं पेट्रोल के, तो आप पर सवारी 10 रुपए बढ़ाएं। आखिरी बार जब 150 रुपए लीटर तेल था तो उस वक्त जो शक्कर से 650 रुपए का किराया था रोड़ी तक और कराची तक। अब जो वही किराया 1600 रुपए हो गया है। और ये तो मैं रोड़ी का मिसाल दे रहा हूँ आपको, मगर आप जो लोग पंजाब की तरफ ट्रेवल करते हैं या कहीं और जाते हैं, ये तो मैं इकोनॉमी का किराया बता रहा हूँ आपको, लोअर एसी, बिजनेस क्लास, स्लीपर, वो तो मना चढ़ गए हैं। आज भी एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर थी कि रेलवे के सबसे बड़ा वो बढ़ गए हैं और हमने इतना कमा लिया। और लोग जो 10 सफर करते थे वो कह रहे हैं कि भाई अब शादी में 2 लोग जाएंगे, हम लोग सफर नहीं कर सकते। तो ये थोड़े मसाइल हैं कि भाई आप 10 रुपए बढ़ाए तो 10 रुपए बढ़ाए ना। ऐसा नहीं कि जो सवारी पे एक सीट पे या एक बर्थ पे आप 1,000 रुपया बढ़ा दें। तो ये एक बड़ा मसला है कि अगर लोगों के लिए सिक्योरिटी भी ट्रेन में होती है, क्योंकि हम अगर बाय रोड सफर करते हैं। और एक बताऊं आपको, जैकमाबाद से सक्खर का किराया 700 रुपए है और वेन लेती है 300 रुपए। मगर वो डरते डरते हुए रात हो जाती है तो लोग कहते हैं यार मैं जैकमाबाद से सक्खर जा रहा हूँ, मैं जॉब करके, तो मैं उस पे जाऊँ। घोटकी से 600 रुपए किराया है। और खैरपुर से आप अंदाजा करेंगे कि 100 रुपए में हम लोग वैन में पहुंच जाते हैं। और खैरपुर से रोड़ी तक का किराया जो है वो भी 400-500 रुपए है। और मुझे कल किसी दोस्त ने बताया टंडो आदम से हैदराबाद का जो ट्रेन का किराया है वो 600 रुपए, और क्या नाम है अगर वैन पे जाए तो 180 रुपए। तो ये उनको समझ में नहीं आ रही कि लोग कराची और हैदराबाद के बीच में भी ट्रेवल करना चाहते हैं, अगर इतना बड़ा किराया लोगों से वसूल करेंगे, ये इनको बात समझ नहीं आती। रोड ट्रांसपोर्ट से मिलकर ये कुछ और करना चाहते हैं। भाई बोले ट्रेन ना काम। आपने कहा कि यकमुश्त जो है इतना ज्यादा किराया बढ़ गया है तो लोग फिर कैसे, आप मोटरवे तो बना देंगे लेकिन सफर कैसे करेंगे लोग, या ट्रेन पे अगर लोग नहीं हर कोई तो जहाज अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो जो जहाज पे सफर करते हैं उनको तो परवाह नहीं होती कि नीचे वाली आवाम क्या कर रही है। हमेशा ऐसे ही होता है। कराची से इम्तियाज हुसैन साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जजार खोड़ो से भाई और जिलानी साहब, आई लव यू। बहुत असर अंगेज होती हैं, अल्लाह जिंदगी से आप खुश रहिए। मैं बस एक थोड़ी सी यार बात करना चाहता हूँ स्नैचिंग के हवाले से कि कराची में इस कदर फ्री फंड में लोगों को मारा जा रहा है और कंट्रोल में आ नहीं रहा है। तो मैं आर्मी चीफ और जो रेंजर्स के बड़े हैं उनसे मोतबाना इल्तमास करता हूँ कि आप कुछ इस मामले में देखें, क्योंकि ये बजाय घटने के दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और ये इतना मुश्किल नहीं है इसको हैंडल करना। सिक्योरिटी अगर प्राइवेटली भी इदारे बना दिए जाएं जैसे फॉरेन कंट्रीज में है तो बहुत बेरोजगारी है, तो ऐसे ऐसे जामाज मिलेंगे कि ये जुर्म कराची से क्या हर जगह से खत्म हो जाएगा। देखिए ना, कराची में मकामी लोग तो रहते हैं और गैर मुकामी भी रहते हैं, तो ये एक इंटरनेशनल सिटी और किसी का बच्चा, किसी का भाई, किसी का कुछ यार फ्री का नहीं है, वो जिगर का टुकड़ा है। खून के आंसू दिन रोने लगता है, अल्लाह न करे किसी के साथ हो। और ये इतना खतरनाक हो चुका है कि ये कंट्रोल में आ ही नहीं रहा है। आज हो जाता है फिर उसके 2 घंटे बाद फिर हो जाता है। और खास तौर पे कराची में गुलिस्तान में जौहर का इलाका, तो भाई हर आदमी डर रहा है, यानी कि कोई मोहब्बत करने वाला शख्स भी आपको रुक के सलाम कर दे या कुछ कह दे तो आप डर जाते हैं। सही बात है। इसके लिए मैं आर्मी चीफ साहब से मोतबाना इल्तमास है और ये अपने डीजी रेंजर जो हाई ये थोड़ा सा इस पे भी देखें, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा ऐसा ना हो कि जो अंदरूनी सिंध डाकुओं के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है तो कराची में भी ऐसी नौबत ना। आप भी बाल बच्चे वाले हैं यार, जलाल खोड़ो भाई, जिलानी भाई, अल्लाह सबको जिंदगी सेहत दे। तो ये बड़ा मसला है, दिल खून के आंसू होता है क्योंकि हर इंसान के लिए बाल बच्चे सब कुछ होता है। बिल्कुल सही बात। आई हियर यू इम्तियाज भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। सॉरी इम्तियाज भाई, मैं वक्फा लेना। वैसे हम बुखार का इलाज करते हैं जब तक हम वो हमें आईसीयू तक ना पहुंचा दें, लेकिन जरा आदत है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि फिर हम देखते फिर भी आर्मी चीफ की तरफ हैं कि स्ट्रीट क्राइम भी आकर वही हल करेंगे। वो अब किसी की तरफ तो देखना है ना बॉस। चलें एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर आपकी मजीद कॉल से लेंगे। वेलकम बैक जी। हम अगले कॉलर हैं कामरान अली नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। गारा बना रहा था जो मजदूर राह में, बेतकल्लुफी न पूछी उस मेहरबान की
नाली का उसमें आबे नजीज भी मिला गया, मट्टी पलीत कर गया मालिक मकान की। जी अब ये जो हमारी आवाम है ना, वो अब जो चीजें, जिन चीजों पे कीमतें प्रिंट भी है ना, वो भी तकरीबन उसी की ट्रेड प्राइस से 20 रुपए 10 रुपए ज्यादा मिल रही हैं। कोल्ड ड्रिंक आप देख लें। और दूसरा एक इंटरनेशनल इशू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये जो गार्डियन में स्टोरी छपी है पाकिस्तान के अंदर घुस के जो इंडिया ने जो दहशतगर्दी की है जी, अब इसका आगे क्या मतलब पाकिस्तान इसको सिफारती सतह पे क्या पाकिस्तान तो क्योंकि वजीर खारजा ट्रेड की बात कर रहे हैं इंडिया से, तो इसका क्या मुस्तकबिल देखते हैं कि क्या होगा? इस इशू को पहले भी फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान ने सफारती लेवल पर कई बार इसको उठाया है। और आपको याद होगा कि ये जो नेटवर्क है असैसिनेशन नेटवर्क, ये पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, कनाडा और अमेरिका में भी ये अटैक्स हुए और आई बिलीव एक यूके के भी है। और ये सिर्फ हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, नेपाल में भी ऐसा होता रहता है। अब कितनी डिप्लोमेटिक क्लाउट इस पर इस्तेमाल की जाएगी, उसके क्या असर होंगे, ये एक अलग सवाल है। दूसरा कामरान भाई ये भी ध्यान में रखें कि अभी इलेक्शन हो जाने दें उधर भारत में, उसके बाद मोदी साहब को जो सीटों की तवक्को है अगर उनको मिलती हैं तो उनके तो बड़े अज़ाइम हैं कि वो वहाँ का आइन दस्तूर भी चेंज करेंगे, सेक्युलर रियासत ख़त्म करेंगे, हिंदू महाराष्ट्र बनाएंगे। अभी उनकी तवज्जो इन सारे मामलात पर है, तो उनका मूड भी देखना होगा कि वो पाकिस्तान से ताल्लुकात चाहते हैं नहीं चाहते। हमारे यहाँ से तो ये बयान आ गए कि हम चाहते हैं कि तजारत हो, लेकिन फ़िलहाल हमें इंतज़ार करना होगा इसके लिए, साथ साथ में ये मामलात भी चलते रहेंगे। अच्छा, ये भी जो बयानात है ना, पहले बंदा कुछ होमवर्क करे और कुछ सेटिंग करे और फिर इस तरह के बयानात दिए। हाँ, ख्वाहिश का इज़हार बस आते ही कर दिया। आई मीन ये इट्स अ स्टूपिड थिंग टू डू फ्रैंकली स्पीकिंग। आई मीन मैं ये कह रहा हूँ ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन पहले एक मतलब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है इन चीज़ों में यार, ऐसे नहीं कि जो भी मुंह में आ गया बस बोल दिया आपने। नसीम उस्मानी साहब है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जत दे, बरकत दे और आपके कलम में और आपकी ज़ुबान में बहुत तासीर अता फरमाए। शुक्रिया। आप जिस मोहब्बत के साथ, जिस खुलूस के साथ इस मुल्क के मसाइल को उजागर करते हैं और उनका हल लाते हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत काबिल तहसीन और काबिल अकीदत बात है। अच्छा, मैं आपकी तवज्जो दो चीज़ों की तरफ कराना चाहता हूँ। इससे पहले भी मैं आपके साथ गुफ्तगू कर चुका हूँ और ख़ास तौर से लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, क्योंकि हम सब के सब मुख्तलिफ कामों में लगे हुए हैं। इस्लामाबाद के अंदर अब ये हो गया है कि जनाब आली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो है नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर हमारे मौजूद हैं जो भी हैं। अब उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर आ गया है और वो काम करे। जब प्राइवेट सोसाइटियां बनती हैं तो वो चार्जेस वसूल करती हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो बाकायदा सीडीए से एनओसी पहले लेती हैं, उसकी फीसें देती हैं, नक्शे पास कराने के पैसे देते हैं, फिर मकानों के नक्शे पास कराने के पैसे देते हैं। अब उन्होंने क्या किया है कि एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, और नोटिफिकेशन भी क्या किया है कि जनवरी की डेट का इशू किया है। जनवरी की डेट का उन्होंने इशू किया है और अब वो कहते हैं जी प्रॉपर्टी टैक्स जो है सबके ऊपर लागू हो गया है, और उसके उन्होंने वो बना दिए हैं। जैसे मिसाल के तौर से F10 है, अब F10 में जो जमीन है या प्लॉट है उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है एक प्लॉट की, जो है 5 मतलब किनाल के प्लॉट की। वही कीमत जो है उन्होंने दूसरी ऐसी सोसाइटियों में हमारी जैसे D17 है या जैसे हमारी G15 है, दूसरे जो छोटे इलाके हैं जो डेवलप किए गए हैं अपने तौर पर, अपनी मदद आपके तौर के ऊपर, उनके अंदर भी वही कीमतें लगाकर जो है ना उन्होंने लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि जी आप टैक्स अदा करें। ना तो वहाँ पे उन्होंने कोई सर्विस प्रोवाइड की है, ना उन्होंने वहाँ पे कोई एम्बुलेंस दी है। आप हालत ये है कि हमारे यहाँ जो इस्लामाबाद में एक जगह के ऊपर एम्बुलेंस का जो है ना वो है सिर्फ, और पूरे शहर में कहीं पे भी नहीं है। अब अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बात हो जाती है तो 1 घंटा लगता है करनौल तक आने के लिए एम्बुलेंस को वहाँ पर, और उस वक्त तक जो है लोग अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाते हैं, जख्मी सारे के सारे। उस्मानी साहब सॉरी, बस हमें प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, सिर्फ ये बता दें कि आपने कोई एप्लीकेशन डाली है, इसको चैलेंज किया है किसी फोरम पे? ये केसेस हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी। अच्छा, हमारा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ जाती वहाँ पर,
آپ لاگو نہیں کر سکتے چیزوں کو. صحیح بات ہے. اصل مسئلے کی جڑ یہی ہے بالکل کہ آپ کے پاس مقامی گورننس نہیں ہے. اکثر لوکل گورنمنٹ میں بات کرتے ہیں اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں اس بات پر. اچھا میں آخری کالر ہیں محمد حماد صاحب ملتان سے. جی حماد صاحب وقت بہت کم ہے. جی میم. جی ہیلو. جی جی وعلیکم السلام. ہم ملتان سے ایمیزون کا کام کرتے ہیں ادھر ورک. ہم ٹریڈنگ پہ مطلب کافی زیادہ وہ لوگوں کا بھی انویسٹ کیا ہوا تھا جس مطلب 34 کروڑ روپے وہ اب پھنس گئے ہیں. کافی لوگ آتے ہیں دروازہ کھڑکاتے ہیں بھی مانگتے ہیں مگر ہماری حکومت کوئی اس پہ رسپانس نہیں دیتی. کافی $15 لاکھ ہے. نہیں سمجھ نہیں آ رہی بات آپ کی. حماد کیا کہنا چاہ رہے ہو آپ؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ٹریڈنگ بٹ کوائن پہ نا. بٹ کوائن پہ کیا ہوا ہے؟ بٹ کوائن پہ بٹ کوائن پہ ڈالے تھے 34 کروڑ. 34 کروڑ آپ کے کیا آپ کے پھنس گئے ہیں؟ آپ کو فراڈ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ پھنس گئے ہیں پیچھے. ایکسچینج ہی نہیں ہو رہا. ایکسچینج نہیں ہو رہا ہے. آپ کو کسی نے چونا تو نہیں لگا دیا حماد بھائی؟ نہیں اس سے پہلے امیزون کا کام کرتے تھے وہ حکومت. اچھا حماد بھائی میری بہت معذرت, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کا ایشو انٹرسٹنگ بھی ہے, کمپلیکیٹڈ بھی ہے. فی الحال ہمیں اس کو یہیں پہ چلے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے. اگلا ہفتہ عید کا ہے. اسپیشل شوز ہم آپ کے لیے لائے ہیں, وہ دیکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی عید کے بعد. شکریہ. خدا حافظ. شب بخیر.